کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ چیچا وطنی کے قریب ریلوے ٹریک سے 30 سالہ شخص کی لاش برآمد، تاحال شناخت نہ ہو سکی، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈائیونڈ میں مانگا منڈی کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا، 50 سالہ شخص جاں بھاگ، ڈرائیور فرار ہو گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں جائیداد کا تنازع، سسرالیوں نے مبینہ طور پر زہر دے کر بہو کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ گجرانوالہ میں آتش زدگی کے باعث متاثر ہونے والے تینوں مزدور دم توڑ گئے، مرنے والے 10 روز قبل فیکٹری میں آتش زدگی مواد پھٹنے سے زخمی ہوئے تھے۔ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ نورنگ آباد 3 روز سے بجلی سے محروم، گرمی کے ستائے شہریوں کا وابڈہ آفس کے سامنے احتجاج، ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ سرگودا میں صاف پانی کی فراہمی کا منصوبہ ناکام ہو گیا، شہر میں لگے 27 فلٹریشن پلانٹ بھی صرف 2 ہی کارآمد۔ بنوں میں آپریشن میں شہید ہونے والے منڈی بہاؤالدین کے سپوت نائب صوبیدار محمد سرور کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے 756ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات ملتان میں شروع ہو گئی، ملک بھر میں عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ سانگھڑ میں بااثر شخصیت نے تحصیلدار کی ملی بھگت، جعلسازی اور تشدد سے زرعی اراضی پر قبضہ کر لیا، پولیس بھی کارروائی سے گریزاں ہے، متاثرہ خاندان انصاف کے لیے دربدر ہو گیا۔ اسٹیٹ لائف کی نجکاری کے خلاف نواب شاہ میں ملازمین کا احتجاج، کہتے ہیں منافع بخش ادارے کی نجکاری کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ کوئٹہ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا سب انسپکٹر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاگ ہو گیا، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار محمد یعقوب خان کا میڈل اسکول کی اپ گریڈیشن کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں تعلیم واحد طاقت ہے جس سے پوری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ اسکردو میں سالانہ شندور پولو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا، روایتی رقص نے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ چیچا وطنی کے قریب ریلوے ٹریک سے 30 سالہ نوجوان کی لاش ملی ہے، تاہم لاش کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ چیچا وطنی کے قریب ریلوے ٹریک سے 30 سالہ نوجوان کی لاش ملی ہے، تھانہ سٹی پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق تاحال جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت نہیں ہو سکی، پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ نوجوان نے خودکشی کی ہے۔
रायगढ़ में मांगा मंडी के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जान भाग हो गया। रायगढ़ के करीब मांगा मंडी पुलिस स्टेशन के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आने वाले मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 50 साला शख्स मोहम्मद वसीम मौके पर ही जान भाग हो गया। मौके पर मौजूद अवाम ने लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे की फौरे बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसे में जान भाग शख्स का ताल्लुक गोजरा से है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। मंडी बहाउद्दीन में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जहर देकर बहू को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके में जायदाद के लालच में मुबैना तौर पर ससुरालियों ने बेवा खातून फातिमा बीबी को जहर देकर कत्ल कर दिया। मकतूला के वालिद के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। मकतूला के वालिदा का कहना है कि 25 साल कबल उसने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद सिद्दीक से की। गुज़श्ता साल उसका दामाद क़ज़ाए इलाही से वफात पा गया और इसकी बेटी अपने हक का मुतालबा करती थी, जिस पर उसके ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मार डाला। मंडी बहाउद्दीन में ये वाकया पेश आया है। मंडी बहाउद्दीन में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जहर देकर बहू को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा भी इस हवाले से दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। मंडी बहाउद्दीन में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जहर देकर बहू को कत्ल कर दिया है। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सके। इसी पर बात करेंगे डीपीओ मंडी बहाउद्दीन राजा बशारत हमारे साथ मौजूद हैं। राजा बशारत साहब, बताइएगा, जायदाद के तनाजे पर खातून को कत्ल किया गया, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, ये बताइएगा मुलजिम कब तक गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? ये बीवी मुलजिम शामिल तफ्तीश हैं, गिरफ्तार तो तब होंगे जब साबित होगा उनके खिलाफ। शामिल तफ्तीश हैं एक्यूज, ठीक है, अवेलेबल है, मुलजिम अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर रहे हैं तफ्तीश हो। अब ये तफ्तीश के बाद साबित होगा ना, उसके बाद फिर गिरफ्तारी उनकी होगी। तो कब तक तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी और कब तक गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? देखिए, वो 24 घंटे 48 घंटे लगेंगे, चीजें देखनी है हमने सारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। राजा बशारत हमारे साथ मौजूद थे, डीपीओ। फैसलाबाद में रास्ता न देने पर रिक्शा ड्राइवर और कार सवार दस्तों गिरेबां हो गए। अवाम ने बमुश्किल बीच बचाव कराया। फैसलाबाद में रोड पर कार सवार ने रिक्शा ड्राइवर को रास्ता देने को कहा तो रिक्शा ड्राइवर तैश में आकर गाली गलौज करने लगा, जिस पर दोनों में झगड़ा हो गया। ताहम पास मौजूद लोगों ने बीच बचाव करवाया। इस दौरान दोनों एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करते रहे। अवाम का कहना था कि लाहौर के बाद अब फैसलाबाद में भी ट्रैफिक के मसाइल गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस भी नाकाम हो चुकी है। नतीजा झगड़ों की सूरत में निकल रहा है। डेरा गाजी खान के इलाके औरंगाबाद में 3 रोज से बिजली से महरूम शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। शदीद गर्मी के बायस अहले इलाका के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 3 रोज बाद भी ट्रांसफार्मर ठीक न होने पर औरंगाबाद के मकीनों का वाबडा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी गई। इस मौके पर मुजाहरीन ने वाबडा हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना है कि औरंगाबाद में 3 रोज कबल वाबडा एहलकार खराब ट्रांसफार्मर को मुरम्मत के लिए उतार कर ले गए, जो ताहार नहीं लगाया गया। बिजली न होने के बायस पानी की शदीद किल्लत का भी सामना है। गुजरांवाला के नवाही इलाके जंगना में फैक्ट्री में आतिशज़दगी और मवाद फटने से जख्मी होने वाले 3 अफराद दम तोड़ गए हैं। तीनों 10 रोज कबल सियालकोट में फैक्ट्री में आतिशगीर मवाद फटने से जख्मी हुए थे। इसी वाले से मजीद बात करते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद फरहान मीर से। फरहान मीर, बताइएगा, वाकया कब पेश आया और क्या इनकी हलाकत के बाद कोई तहकीकात भी की गई हैं? जी, जगना में आतिशज़दगी मवाद फटने से जख्मी होने वाले 3 अफराद जो है वो वक्त से जो है वो दम तोड़ गए हैं। जहां भाग होने वालों में राहगीर काशिफ, मजदूर आरिफ और कारखाना मालिक जो है वो परवेज शामिल है। 10 रोज पहले जब सियालकोट बाईपास के करीब ये कारखाने में जब ये मवाद फटा, 3 अफराद जख्मी हो गए थे और उनको शदीद जख्मी हालत में जो है वो रेफर कर दिया गया था, मगर ये तीनों जो नौजवान है ये जानवर ना हो सके और दम तोड़ चुके हैं। पुलिस ने वाकई की जो है इब्तदाई जो है वो तफ्तीश जो है वो जारी है और इस हवाले से जो है वो कल जो तीसरा नौजवान जला है, इस हवाले से अब पुलिस जो है अपनी इब्तदाई तफ्तीश जब भी पब्लिक करेगी वो हम अपने नाज़रीन को बताएं। जी फरहान मीर, आपने तफसीलात दी, आपका शुक्रिया।
खबर है गुजरांवाला से, जहां सैकड़ों मजदूरों ने टाउन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली है। नगार फाटक के करीब सैकड़ों मजदूर सुबह के वक्त रोजी की तलाश में खड़े होते थे, जिन्हें टाउन एनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर ने सड़क किनारे खड़े होने से रोक दिया था, जिस पर मजदूरों ने टाउन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि एनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर आए रोज उन्हें तंग करता है और उन्हें रोजी के लिए सड़क किनारे खड़ा नहीं होने देता, जिसके बायस दिहाड़ी न मिलने से वो बेरोजगार हो रहे हैं। वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सरगाना ने खुली कचहरी लगाई और आवाम के मसाइल सुने। शोरकोट थाना वरियामवाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग हुमायूं मकसूद सिंधु और रुकन सूबाई असम्बली खालिद सरगाना ने खुली कचहरी लगाई और आवाम के मसाइल दरियाफ्त किए। लोगों ने पुलिस के मुतालिक मुकदमात के इंदराज न होने की शिकायत की, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मौके पर अहकामात जारी किए और आवाम को यकीन दहानी कराई कि ऐसे तमाम पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो करप्शन और फराइज की गफलत के मुर्तकब पाए गए। उन्होंने कहा कि लोग अपनी शिकायत के लिए उनसे बराह रास्त रुजू करें। उनका कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में इत्तला करके हुसूल इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। बनू ऑपरेशन में शिद्दत पसंदों की फायरिंग से शहीद होने वाले नायब सूबेदार मोहम्मद सरवर को मंडी बहाउद्दीन में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव चक ख्वाजा का रिहायशी पाक आर्मी का जवान नायब सूबेदार मोहम्मद सरवर गुज़िश्ता रोज बन्नू ऑपरेशन में शिद्दत पसंदों की फायरिंग से शहीद हुए थे। मोहम्मद सरवर शहीद का जज्दे खाकी जब आबाई इलाके पहुंचा तो फिजा अल्लाहु अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नायब सूबेदार मोहम्मद सरवर शहीद को आबाई गांव चक ख्वाजा में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। उनके नमाज जनाजा में पंजाब 36 रेजिमेंट के अफसरान और जवानों समेत कसीर तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। मोहम्मद सरवर शहीद की कब्र पर पंजाब 36 रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल अताउर रहमान ने फूलों की चादर चढ़ाई और पाक आर्मी के जवानों ने सलामी भी दी। मोहम्मद सरवर शहीद ने 15 साल कबल जिला नौशहरा पाक आर्मी सेंटर में बतौर सिपाही पाक आर्मी में शमूलियत इख्तियार की थी। शहीद के सोगवारान में बेवा 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। शाहकोट में वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के कामयाब ऑपरेशन पर शुक्राने और जल्द सेहतियाबी के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून शाहकोट की जानिब से वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआया तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें कुरान ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम का मुश्तरका सरमाया है। नवाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो है। इंशाअल्लाह वो जल्द मुकम्मल सेहतियाब होकर एक नए जज्बे के साथ अवाम की खिदमत के लिए हमारे दरमियान होंगे। कबलजी वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहिर, मुशीर वजीर आला पंजाब राना मोहम्मद अरशद और सिटी सदर मुस्लिम लीग नून जुल्फ़िकार सिद्धू की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ की कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी पर शुक्राने के तौर पर 5 बकरों का सदका भी दिया गया। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के 756वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मुल्तान में शुरू हो गई हैं। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल शुबानुल मुअज्जम के आखिर में मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत करती है। हर साल की तरह इन साल भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत के लिए जोक दर जोक आ रही है। इस मौके पर ज़िला इंतजामिया मुल्तान की जानिब से ज़ायरीन के लिए खसूसी इंतजामात किए गए हैं। उर्स के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। उर्स की तकरीबात का आगाज रूहानी महाफिल से होता है। आज शाम महफिल समा का खसूसी इनेकाद किया जाएगा। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन का कहना है कि वो हर साल उर्स में शिरकत के लिए आते हैं और भरपूर रूहानी सुकून हासिल करते हैं। शाह शम्स तबरेज समेत बुजुर्गाने दीन ने अपनी तमाम जिंदगी अशात इस्लाम और खिदमत खल्क में गुजारी। दूसरों की बेलौस खिदमत सूफिया कराम का शेवा है। शाह शम्स तबरेज का उर्स भी इसी पैगाम की तजदीद का दर्स देता है। डस्का के रिहायशी 80 साला बुजुर्ग मोहम्मद हुसैन जो दौरे जदीद में भी साइकिल पर सवारी करते हैं, उनके पास 1948 की खरीदी गई साइकिल आज भी मौजूद है। उनका कहना है कि लंबी उम्र का राज वर्जिश और खुश रहना है।
हैं डस्का के 80 साल चाचा मोहम्मद सैन, जिनके पास 69 साल पुरानी साइकिल है। 69 साल का साथ है इस साइकिल और चाचा मोहम्मद सैन का। साइकिल के साथ लगाव का ये आलम है कि उन्होंने साइकिल की देखभाल के साथ साथ इस साइकिल की असल रसीद भी संभाली हुई है, जिस पर सने खरीद और दुकान का नाम वाज़ह पढ़ा जा सकता है। तो जी 1948 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਲਾਹੌਰੋਂ। ਉਹ ਕੋ 2 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ 2 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਡਸਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਰੋੜ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। चाचा मोहम्मद सैन इस उम्र में भी हशाश बशाश हैं और रोजाना साइकिल पर 20 से 30 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ 69 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚੋਂ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। कायद मजलिस वहदत बैनुल मुस्लिमीन अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी ने रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद खान नियाजी के वालिद की वफात पर उनसे ताज़ियत की और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। कायद मस्जिद वहदत मुस्लिमीन अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद खान नियाजी के घर गए। उन्होंने अब्दुल मजीद खान के वालिद की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए दुआ भी की। इस मौके पर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करोड़ लाल ईसन, राना मोहम्मद उस्मान और PTI के कारकुन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। सराय मुगल में पहले रहमानी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इलाके भर से मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। सराय मुगल के इलाके नत्थे जागीर में पहला रहमानी स्पोर्ट्स फेस्टिवल जोशो खरोश से जारी है। फेस्टिवल में इलाके भर से क्रिकेट की 55 और वॉलीबॉल की 10 टीमें समेत रस्साकुशी और साइकिल रेस और दीगर खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का कहना था कि खेलों के फ़रोग से न सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी निजात मिलती है। आज के नौजवान ही कल के मुल्की बागडोर संभालेंगे। इस मौके पर ऐलान किया गया कि पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को मोटरसाइकिल बतौर इनाम दी जाएगी। फेस्टिवल में शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की और खेलों के फ़रोग की इस काविश को सराहा। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। हैदराबाद में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही अशया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई का सैलाब आ जाने से आवाम शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। कमी हो या हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रिलीफ पैकेज, लेकिन इसके बावजूद भी इसके समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुंच सके और अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी न होने से आवाम परेशान है। गरीब मुतवस्सत तबका अजियत में मुब्तला है और माह सयाम की आमद से कबल ही महंगाई का न रुकने वाला सैलाब आ चुका है। महंगाई में पिसी आवाम का कहना है कि जब भी रमजानुल मुबारक करीब आता है महंगाई का तूफान आ जाता है, मगर जब कीमतों में कमी आती है तो अशियाए खुरोनोश की कीमतें बरकरार रहती हैं। दावे वादे तो किए जाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता और न ही ये वादे वफा होते हैं। हैदराबाद के मकीनों का कहना था कि गरीब तबका महरूमियों का शिकार है और रिलीफ से महरूम है। उनका मजीद कहना था कि जखीरा अंदोज और नफाखोर भी सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने भी लूटने के लिए कमर कस ली है। हुकूमत से मुतालबा है कि गरीबों पर रहम किया जाए। सांगड़ में बासर शख्सियत ने तहसीलदार की मिली भगत, जालसाजी और तशद्दुद के जरिए ज़राई अराजी पर कब्जा कर लिया। मुतासरीन ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया है। सांगड़ के नवाही इलाके के रिहायशी अब्दुल अजीज और अब्दुल रसूद ने नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्होंने 2009 में मोहम्मद सिद्दीक नामी शख्स से 42 एकड़ अराजी 45 लाख रुपए में खरीदी। 38 लाख रुपए की अदायगी कर दी गई जबकि 7 लाख रुपए अदा करने थे। उन्होंने मजीद बताया कि मकामी सियासी रहनुमा अब्दुल क़य्यूम आराई ने तहसीलदार की मिली भगत से जाली कागजात तैयार कराए। बाद अज़ा बासर मुलजिम ने जमीन के असल मालिक मोहम्मद सिद्दीक को अगवा किया और असलहे की नोक पर
पर जमीन के कागजात पर अंगूठे लगवाए। सियासी रहनुमा अब्दुल क़य्यूम आराई पुलिस के दबाव पर अब हमें मुतालिका अराजी से बेदखल करना चाहता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस जालसाजी में तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर और सब रजिस्ट्रार भी मुलव्विस हैं। इंसाफ के लिए DCO, SSP को भी दरख्वास्तें दी, मगर बरसरे इक़्तिदार पार्टी से ताल्लुक़ रखने की वजह से अब्दुल क़य्यूम आराई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। घोटकी में मेहनत कश के गधे ने वडेरे के मवेशियों का चारा खा लिया। सफाक शख्स ने मेहनत कश और इसके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खानदान पुलिस स्टेशन पहुंच गया। घोटकी के तहसील ढरकी में बाबू मलिक नामी मेहनत कश के गधे ने वडेरे के मवेशियों के लिए रखी गई घास खा ली। पास बैठा वडेरा तैश में आ गया और अपने साथियों के हमरा गधे के मालिक और अहले खाना को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के बायस मासूम बच्ची की टांग टूट गई। मुतासरा खानदान कुरान पाक सर पर उठाए ढरकी थाने पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने भी रिवायती हट धर्मी का मुजाहरा किया। बासर होने के बायस पुलिस भी वडेरे के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। ताहाल मुकदमा भी दर्ज न हो सका। गरीब मेहनत कश का कहना है कि अगर उसे इंसाफ न मिला तो वो खानदान समेत खुदकुशी पर मजबूर होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस और जालिम वडेरे पर होगी। नवाबशाह में निजकारी के खिलाफ स्टेट लाइफ के सैकड़ों मुलाजमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। नवाबशाह में स्टेट लाइफ के सैकड़ों मुलाजमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर निजकारी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि स्टेट लाइफ एक मुनाफा बख्श इदारा है जिसकी मौजूदगी हुकूमत निजकारी कर रही है। उनका कहना था कि वो किसी सूरत हुकूमत के फैसले को नहीं मानेंगे। उन्होंने मुतालिबा किया कि स्टेट लाइफ की निजकारी और फैसला वापस लिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। जैकबाबाद में महकमा तालीम के लोअर स्टाफ ने 580 मुलाजमीन को नौकरियों से हटाए जाने पर सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। जैकबाबाद में महकमा तालीम के ज़िले दफ्तर और लिशन की जानिब से सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दे दिया।